Good morning, students. Welcome to the e-learning session of Science and Technology. Today, we are going to discuss chapter number 15, Some Natural Phenomena. Natural phenomena, as the term suggests, those phenomena which occur naturally, which are difficult to predict. The first is lightning. Lightning is caused due to the accumulation of charges in the clouds. काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं. फर्स्ट वी कैन सी इन द पिक्चर, हमें इलेक्ट्रिक पोल्स पे काफ़ी बार स्पार्क देखने को मिलता है. इट कैन बी ड्यू टू लूज वायर्स और व्हेन द विंड ब्लोज. सो लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. सेकेंड इज, कई बार सर्दियों में जब हम वुलन्स को उतारते हैं तो वी कैन हियर अ क्रैकलिंग साउंड. And also a spark sometimes in dark we can see. So this is due to the same thing. It can be associated with lightning. Charging by rubbing. Here we can see in the picture given below. Silk cloth को जब हम एक glass rod के साथ में rub करेंगे, what will happen? By induction, charges will develop, electric charges will develop. On the cloth, negative charges will develop, while on the glass rod, the surface of the glass rod will become positively charged. These objects are called as charged objects. So charging by rubbing, it creates friction, and due to friction, charges develop हो रहे हैं. Similarly, when we comb our hair, then also friction occurs and charges develop. On our hair, positive charge develops, while on the comb, negative charges develop. These electric charges which are generated by rubbing are static. मतलब कि वो अपने आप से मूव नहीं करेंगे unless and until there is a conductor through which they can move. Okay? जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया, दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, वुलन क्लोथ्स वाला, क्रैकलिंग साउंड वाला. इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग. हमारी बॉडी और वुलन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है ड्यू टू विच चार्जेस डेवलप, एंड बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड चार्जेस क्रैकलिंग साउंड कैन बी हर्ड. Types of charges and their interaction. Here it is activity 15.3 from your textbook. What we are doing, we are taking two inflated balloons and hang those balloons in such a way that they do not touch each other. अब इन दोनों balloons के surface को हम एक woolen cloth से rub करेंगे. What will happen? Rubbing will generate charges. अब दोनों balloons पे एक जैसा charge generate हुआ है, negative charge, as you can see in picture. When you will release these balloons, what will happen? They will repel each other. Why they will repel each other? Because the surface of both the balloons consists of same charge. So we can say here that like charges repel each other. In the second, that is activity 15.4, what we are doing, we are bringing a charged balloon near a charged refill. रिफ़िल को के सरफेस को हमने पॉलीथीन से रब किया है और उसको हमने एक टम्बलर में रखा है रिफ़िल को, ताकि वो एक स्टैंड की तरह काम करे. बलून के सरफेस को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया है. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद डिफरेंट थिंग्स. दोनों को जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे, व्हाट विल हैपन? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. Next is transfer of charge. As I said earlier, charges which are produced by rubbing, they are static. These charges are static unless and until there is any medium through which they can flow. So here we are studying about transfer of charge. फिगर में आप इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम देख रहे हैं. It is a device which is used to detect whether a body is charged or not. What we have done here, हमने एक ग्लास जार लिया है, उसको कार्डबोर्ड से कवर कर दिया है, उसके लिड को. थ्रू द कार्डबोर्ड हमने एक होल करके एक मेटल का रॉड हैंग किया है, जिसके एक एंड पे एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स को रखा है, दूसरा एंड हवा में है, ओपन है. व्हेन वी विल ब्रिंग अ चार्ज्ड रिफिल को पॉलीथीन के सरफेस से रब किया, उस पर चार्जेस जनरेट हुए, उसको हमने जब मेटल के रॉड से टच किया, व्हाट विल हैपन? चार्जेस विल फ्लो
through the metal rod and will reach the aluminum strips. Aluminum strips will repel each other. They will become wide open. Why this is happening here? It is because the charges on both the aluminum strips are same. Like charges हैं, एक दूसरे को repel किया. After what happens afterwards? अब अगर हम इस मेटल क्लिप को, मेटल की रॉड को, एंड को हम अपने हाथों से टच करेंगे, what will happen? The charges will flow through our body to the earth. हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो when we will touch this metal rod, charges will flow through our body to the earth. Now this process of transferring charge from a charged object to the earth is called as earthing. Next is lightning. Why it happens? As I said earlier, it is due to accumulation of charges. What kind of charges? देखिए, क्लाउड्स के अपर एजेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इधर, और लोअर एजेस पे नेगेटिव चार्ज. वाइल ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड देख सकते हैं आप पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं. जब ये जो चार्जेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड इज़ वेरी लार्ज, व्हाट हैपन्स? दे बोथ मीट ईच अदर प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जो कि हम देखते हैं कई बार नेचुरल फिनोमेना है, कई बार हम देखते हैं बिजली किस तरीके से चमकती है. सो दिस हैपन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. These sparks or these streaks as lightning, and this process of lightning, it is called as electric discharge. What are the do's and don'ts during a thunderstorm, during lightning? क्या करेंगे? अगर आप आउटडोर्स हैं तो टॉल ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, इन सब से आप दूर रहें. अवॉइड स्टेइंग क्लोज टू दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज थिंग्स. ओपन में अगर आप हैं तो डोंट ले ऑन ग्राउंड, बिकॉज आपकी बॉडी भी गुड कंडक्टर है. इंस्टेड यू हैव टू सिट इन दिस स्क्वाट पोजिशन विच इज़ गिवन इन द मिडल ऑफ द फिगर, बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट टारगेट. अवॉइड स्टेइंग नियर ओपन व्हीकल्स. वाइल इनडोर्स, अगर आप घरों में हैं तो अवॉइड टेकिंग बाथ, बिकॉज रनिंग वाटर कैन हार्म यू. इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक. ऑल्सो avoid touching telephone cables, electric wires in the house. It is better to unplug all the electric wires. Lightning conductors. Conductors जो कि चार्जेस को कंडक्ट करेंगे. बिल्डिंग्स को, टॉल बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए व्हाट वी डू, वी इंस्टॉल दिस डिवाइस. व्हाट इज़ इट? एक मेटल रॉड है. मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल रॉड है, उसको हम बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते हैं. उसका एक एंड हवा में रहता है, इट इज़ इन दी एयर, वाइल द अदर एंड इट इज़ इन दी ग्राउंड. व्हेन लाइटनिंग अकर्स, चार्जेस जो हैं वो इस मेटल के, इस रॉड के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे, अर्थिंग हो जाएगा. सो इन दिस वे इट प्रोटेक्ट्स टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. Earthquake, another natural phenomena. What is it? It is a sudden shaking or trembling of earth for a shorter period of time. But this short period of time is large enough to produce major destruction, to cause heavy damage to our lives and property. Now, what is the cause of earthquake? What causes an earthquake? See, earth, इसका स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी सारे लेयर्स में होता है. इनर कोर, outer core, mantle and crust. Outermost layer is the crust. Now the outermost layer of earth, it is fragmented, और हर एक फ्रेगमेंट को इधर प्लेट बोला जाता है. जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, मूव करती हैं, तभी अर्थक्वेक कॉज होता है. द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स आर वीक जोन्स. दीज आर कॉल्ड एज सेस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स. ऊपर वाले पिक्चर में रेड जो पॉइंट है, इट इज़ डिपिक्टिंग द फॉल्ट जोन्स. ऑल्सो सेस्मिक वेव्स, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेस्मिक वेव्स बता रहा है. इस तरीके की वेव्स जनरेट होती हैं जबकि कोई अर्थक्वेक आता है. सो मेजरली इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स. द प्लेट इज़ द outermost layer which is fragmented. Richter scale. This scale is used to calculate the magnitude or the intensity of the earthquake. Now, protection from earthquake. What should we do to protect ourselves, to protect our properties from earthquake? So buildings
उस तरीके की कंस्ट्रक्ट हम करें थ्रू स्पेशलिस्ट, इनके जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करके इस तरीके की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए जो कि अर्थक्वेक्स के इफ़ेक्ट को झेल सके, काउंटर कर सके। ऑल्सो इन सेस्मिक एरियाज़ और सेंसिटिव एरियाज़, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? मेनली गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी स्टेट्स में अर्थक्वेक काफ़ी बार आ चुका है। तो ऐसी स्टेट्स में हम लोग इस तरीके की बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें जहाँ पे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद ली जाए, सो दैट बिल्डिंग्स को गिरने से बचाया जा सके। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम उस तरीके का यूज़ करें जो कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो ज़्यादा हैवी डैमेज कॉज ना करें। व्हेन यू पीपल आर आउटसाइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो आप एक ओपन स्पेस में जाने का कोशिश करें विच इज़ वेयर देर आर नो टॉल बिल्डिंग्स, सो दैट अगर बिल्डिंग कोलैप्स भी होती है तो यू आर सेफ देयर। ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स विच कैन फॉल ऑन यू। इनसाइड द हाउसेस कबर्ड्स, वॉल शेल्व्स, ऐसी सब चीज़ें अगर फिक्स होंगी तो दे विल नॉट इमीडिएटली फॉल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ, जैसे लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के लिए चार्ज बॉडी अगर है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया था, सिमिलरली अर्थक्वेक उसको मेजर करने के लिए, उसके इंटेंसिटी के लिए हम सेस्मोग्राफ यूज़ कर रहे हैं। It is an instrument which is used to detect and record earthquakes. It consists of a vibrating rod or a pendulum at the end of which a pen is attached. Beneath the pen, we have a rotating drum on which a paper is wrapped. जब भी कोई earthquake आता है, ग्राउंड शेक करता है, तो पेंडुलम जो है वो रिकॉर्ड करता है पेपर पे अपने रीडिंग्स, और इन रीडिंग्स की मदद से हम मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को पता लगा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।